Morning class 9. We have started chapter 2 of geography, physical features of India, and one video has already uploaded of this chapter. Has been already have been done. One video has been completed and it has been uploaded. So please go through the first video, then you will understand easily what has been in the basic concept of this chapter. So we will discuss about the features, physical features, which you have already have done in class 8. This chapter has been taught in class 8. Now we will do in details, little bit of details. Now in the previous class we have done about the physical features, the first physical features of India, that is the Himalayas. So we have done the Himalayas, and we have seen that the Himalaya has been divided into two parts. First is horizontal, then vertical. Okay, so we have done these two. Now we will go through these, what is horizontal and vertical. So we have seen the three ranges, three mountains. The first one is continuously moving, the Himalayan mountains. These are the peak of these mountain ranges. So this is horizontal layer. So we have seen there are three: Himadri, Himachal and Shivalik. So number 1 is Himadri, number 2 is Himachal, and number 3 is Shivalik. So this is the three horizontals. We have divided the mountain ranges. Then we have divided into region wise. So that was the 4 regions we have divided, and we have discussed in the last video. We have discussed about. So now it will be vertical. So there are 4 regions. 1, number 2, number 3, number 4 regions. So this is vertical. Okay. So vertically, the area which has been Punjab Himalayan, the area between the river Indus and Satluj. So the river which is flowing Indus and Satluj, the area between these two rivers is been called as Punjab Himalaya. So from Punjab, again from Satluj to Kali. So the river which is flowing from Satluj and Kali, the area between these two rivers is been called as Kuman Himalaya. From Kali to Tista, these again the two different rivers. So the area between these two rivers is been called Nepal Himalaya, and actually this area will move to Nepal area only. And the last one is from Tista to Dihang, is been called as Assam Himalaya. So this is what has been divided. Now let's see the map. So this is what we have done, that the first ranges with continuous ranges is going on, Himadri. Then the second one is the gap, there is no continuity, and because there is no continuity, the third one is Shivalik. Okay, so the land between these area is called the area between the two mountains. This is a valley, and this is a hill stations where people used to go for vacations. So these are the hill stations in between these two mountain ranges, Himachal and Shivalik. Then we have seen area wise, we have done. This is the horizontal and now vertical. So the Indus river is flowing here, and this was the Satluj river. This is Satluj and this is Indus. So the land between these two areas is been called Punjab. Then from Satluj to Kuman, Satluj to Kali, this is called Kuman Himalaya. And from Kali to Tista, this is called Nepal Himalaya. And from Tista to Dihang, this is called Assam Himalaya. So again 1, number 2, number 3 and number 4. So this is how the area has been divided vertically. Okay. So we have already done this on the last video. Today we are going to start with, we have done the Purvanchal also, the eastern part of the area, that is again. Let's see the map. This is the area 1, 2, 3 and the fourth one. These are the 4 groups of mountains, peaks, and the 3 peaks over here. And this area is called as a Purvanchal. So this has also been done in the last class. Today our topic is the northern plain. How
and how important is this plain and how this has been formed. So the northern plain has been formed by the interaction of the three major river. Mainly कौन है? Indus, Ganga and Brahmaputra. So these are the three main river which has formed the northern plain along with their tributaries. Now what is tributaries? When the rivers, when the main river is flowing and the small river join the main river. So the streams which join the main river, and after joining the water volume of the main river increases. So this small river has been called as tributary. ऐसे क्या बोलते हैं? Tributary. We have already discussed in this previous classes, in the last class, in 8th standard. So this is called tributaries. One word is also been used when the river bifurcate. जैसे अब एक रिवर से दो रिवर में बदल जाते हैं ड्यू टू मेनी रीजन्स, सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, तो दैट टर्न इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस. तो ये 1 से 2 में हो गई तो इसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी. ठीक है. तो डिफरेंसेस ये है कि 1 से 2 हो जाती है. जब एक में कोई रिवर, स्मॉल रिवर आके मेन रिवर पे मर्ज करता है तो वह ट्रिब्यूटरीज हो जाती है. तो इसी तरह से कहा गया जो नॉर्थन प्लेन है ये फॉर्म्ड हुआ है विद द हेल्प ऑफ 3 मेन रिवर, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विद देयर ट्रिब्यूटरीज. और ये साथ में क्या लेके आई है? एलुवियल सॉइल लेके आई, बिकॉज इट्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयंस. वही हिमालयन माउंटेन से फ्लो होते हुए नीचे आ रही है. और इसने डिपॉजिट कहाँ किया? शिवालिक के बाद एरिया जो है वो प्लेन एरिया शुरू हो जाता है. तो इसी तरह से उन्होंने शिवालिक के बाद वाले एरिया में, दैट वाज द फुट हिल ऑफ द माउंटेन्स बोल सकते हो शिवालिक को. तो यहाँ पे डिपॉजिट किया है और ये डिपोजिशन वॉज टुक प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. 1 दिन 2 दिन नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर लगा इसको डिपॉजिट करने में. तो नॉर्थन प्लेन का एरिया कितना आता है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसकी पूरी एरिया है. डेंसली पॉपुलेटेड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखा गया प्लेन्स है, रिवर्स है. देन रिवर्स है तो एग्रीकल्चर ईजी होगा, एग्रीकल्चर्स होंगे, एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्री भी है यहाँ पे. फिर क्लाइमेट इज़ ऑल्सो गुड, क्लाइमेट भी अच्छा है. तो खाना भी है, लोगों के पास काम भी है, पानी भी है और रहने के लिए क्लाइमेट भी अच्छा है. तो इसके लिए ये एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेट होता है. वर्ल्ड में कोई भी प्लेन एरिया में जाएंगे इट विल बी पॉपुलेटेड एरिया. ओके. तो इसी तरह से इसकी जो है लेंथ 2400 दैट इज़ 2400 एंड 240 to 320 जो किलोमीटर्स ये इसकी क्या है? ये ब्रेथ है. फिर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द लैंड है, सॉइल अच्छी है जिसके के लिए पानी की कमी नहीं है, तो इसमें एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है डिपोजिशनल वर्क, रिवर्स ने जो भी पत्थर मिट्टी ला के डिपोजिट किया है अपने लोअर कोस्ट में डिपोजिट करती गई है. और जैसी वो प्लेन में आती है रिवर, जैसे प्लेन में जैसे माउंटेन से नीचे उतरती है, तो जैसे वो प्लेन में आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वो किस में फ़्लो करती है पहले. अब वो फ्लो होती है प्लेन एरिया में, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाने लगती है. माउंटेन्स में तो बहुत उसकी हाइट थी, इसके लिए उसकी स्पीड थी, वेलोसिटी भी हाई थी. लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन में आती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है. और वो जेंटली स्लोप, फिर वो धीरे धीरे स्लोप आराम से बहती है, बहुत आराम से बहती है, आगे जाती है बहते हुए. और इसी तरह से डिच फॉर्म्स इन द रिवराइंस ऑल्सो. रिवराइंस मतलब जब रिवर्स फ्लो करते करते आपस में जैसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाती है, फिर इस तरह से वो, तो जब वो लैंड देखा जाता है कि पूरे पानी से घिर जाता है, तो इसी तरह से इस तरह से आइलैंड जैसा फॉर्म, तो इसको जो है रिवर फॉर्म करती है, रिवराइन. तो फॉर्मेशंस आइलैंड फॉर्म करने लगती है. अब आता है यहाँ पे कहा गया कि इसके डिपोजिशनल्स के कारण जब ये रिवर, जैसे अभी हम डिस्कस किया कि रिवर है, जब रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जा रहा है इसकी माउथ में, तो वो आगे नहीं जा पाई, तो वो स्प्लिट हो रही है 2 डायरेक्शन में, फिर आगे जाती है, फिर 2 में डिवाइड हो जाती है. तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया? ये ज़मीन आ गया, ये फिर ये वाटर हो गया, ये लैंड हो गया, फिर वापस वाटर आ गया. तो रिवर लाइन तो इसी तरह से फॉर्म्ड हो गया. तो इसी तरह से ये स्प्लिट हो जा रही है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट. और फिर से वो 2 भाग में जब स्प्लिट होती है तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो हमने आगे डिस्कस किया. अब हमने इसको भी डिवाइड करना है प्लेन को. तो जिस तरह से हमने देखा कि गंगा, तो अभी हमने देखा कि गंगा, एक बार वापस मैप में चलते हैं पीछे पेज में.
अब ये देखो, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे इंदस रिवर्स है, तो ये वाला एरिया मोस्टली, ठीक है, पंजाब तक ये वाला एरिया किसने बनाया? और मेनली जो हमारे पास जगह 20% है, बाकी जो है 80% वो पाकिस्तान चला गया, क्योंकि इंदस जो रिवर्स है उसकी 5 जो ट्रिब्यूटरीज है वो चला गया पाकिस्तान में। फिर उसके बाद ये गंगा फ्लो की इधर आती है, ये जो एंटर होती है गंगा रिवर। तो ये जो गंगा रिवर है यहाँ से फ्लो होती है, पूरे इस एरिया को जो क्या करिए वो क्या करिए यहाँ पर उसको, ये रहा गंगा एंटर करती, ये रहा मानसरोवर लेक, यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ से एंटर करती, इस तरह से टर्न होता है उसका, और ये टर्न होते हुए आगे बढ़ती है। फिर यहाँ से बाइफोगेट होती है 2 टुकड़े में, एक बंगाल में फिर एक बांग्लादेश चली जाती है। फिर साथ में इसकी जो बहुत सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती है, इसकी बहुत सारी है, और ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज होती है अलग अलग, जिस तरह से दिख रहा होगा आपको, इस तरह से बहुत सारी ये प्लेन एरिया है। तो इसी तरह से ये एरिया जो है गंगा ने बनाया। तो ये एरिया गंगा रिवर ने बनाया, तो इस तरह से इसको गंगेटिक प्लेन के नाम से भी कहा जाता है। ये स्मॉल एरिया जो यहाँ के बाद यहाँ से आता है वो इंदस रिवर ने बनाया, क्योंकि इसका बाकी मेन हिस्सा जो है वो चला गया पाकिस्तान में। तो ये वाला एरिया हो गया इंदस रिवर्स ने बनाया, और ये वाला हो गया गंगा रिवर ने, और ये वाला एरिया जो है ब्रह्मपुत्र रिवर ने, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी यहीं से फ्लो होते हुए एंटर करती है। तो 3 रिवर्स ने 3 एरिया को फॉर्म किया। तो इस तरह से वह इंदस रीजन्स हो गया, ये गंगा वाला एरिया हो गया बड़ा सा, और ये वाला हो गया ब्रह्मपुत्र। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 इस तरह से हो गया। ये कौन सा हो गया? ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन जो था, हमने प्लेन को डिवाइड किया, इसे भी वैसे डिवाइड करेंगे जैसे हमने हिमालयंस को डिवाइड किया, तो ये वर्टिकल हो गया। तो ये इंदस रिवर्स के कारण, ये वाला गंगा रिवर्स के कारण, ये वाला ये सारा एरिया प्लेन एरिया, ये सारा एरिया प्लेन, आपको मैप में दिखेगा यहाँ पर ईज़िली। तो ये प्लेन एरिया था, तो इस तरह से ये इंदस वाला हो गया, ये गंगा वाला एरिया हो गया, और ये ब्रह्मपुत्र। तो ये देखा जा रहा है वर्टिकली, इसको हमने किस तरह से डिवाइड किया, वर्टिकल हो रहा है, अब ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है ना। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनली बोल सकते हैं। फिर उसको वापस प्लेन को डिवाइड किया जाएगा हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली डिवाइड करेंगे तो पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा, और इस तरह से 4th, ठीक है। तो इसी तरह से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 रीजन्स। तो इसको 4 लेयर्स में डिवाइड करेंगे हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये भाबर है, पहला वाला क्या है? भाबर। नंबर 1 भाबर है, जो यहाँ पे मेनली जो है ये किसके नीचे आता है? एकदम शिवालिक के नीचे ही आता है। तो यहाँ पे पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। यहाँ पे जो रिवर्स जो है दिखती है। फिर जैसे ही वो 1 से 2 लेवल पे आता है, वो हो जाता है नंबर 2 हो जाता है तराई रीजन्स। तो नंबर 2 क्या हो जाता है? नंबर 2 तराई रीजन्स हो जाता है। तो तराई रीजन में क्या होता है? लैंड जो है वो वेट ही हो जाती है, वो ज़्यादा गीली मिट्टी हो जाती है, ज़्यादा चिपचिपा वाला मिट्टी जो होता है वो दिखता है। और ये एरिया बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी है। डेंसली पॉपुलेटेड किसके पॉपुलेटेड है? वो फॉरेस्ट का। तो डेंसली फॉरेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा डेंस है ये फॉरेस्ट, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा स्वैम्पी, नंबर 2 जो है स्वैम्पी एरिया, बहुत ज़्यादा पानी जो है चिपचिपा है। ये कारण इसलिए कि जैसे नंबर 1 में से रिवर क्रॉस करके 2 में आती है, तो ये अंडरग्राउंड चली जाती है पानी। यहाँ पे जो है स्ट्रीम्स जो है इसको कहा जाता है डिसअपियर हो जाती है, दिखता नहीं है वो, ठीक है। तो पहले में पेबल्स देखा गया, स्ट्रीम्स दिख रही थी, नंबर 2 में पेबल्स कम हो गए, स्ट्रीम्स जो है डिसअपियर हो गई, और जो लैंड थी वो स्वैम्पी वेट मार्शी लैंड हो गई। और ये बहुत ज़्यादा क्या है? डेंस है, किस में? फॉरेस्ट एरिया में। तो जब आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि जब इंडिया पार्टीशन हुई थी, तो पाकिस्तान से बहुत से लोग जो आए थे इंडिया के अंदर पाकिस्तान से, तो जब इनको जगह दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो इसमें नंबर 2 में दिया था। नंबर 2 कौन सी रीजन है? तराई रीजन है, ठीक है ना। तो तराई रीजन्स है। तो इसी तरह से इस एरिया में पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे, तो इनको इस एरिया में दिया गया था रहने के लिए, और कुछ एरिया को कट करके जंगलों को कल्टीवेशन के लिए भी शुरू कर दिया गया। तो ये वो वाला एरिया है। तो नंबर 2 इस तराई। फिर नंबर 3, तो नंबर 3 जो एरिया था वो भागर है। जैसे हम लोग भागर बोलते हैं, कोई पुराना चीज़ हो जाता है हम लोग उसको बेच देते, दे देते किसी को। तो जो 3rd वाला है वो कौन सा है? भागर, ठीक है। तो 3rd वाला जो एरिया था, 3rd लेवल, नंबर 1, 2, 3, फिर 4, तो 3rd वाला है भागर, BHAGAR। भागर जो है कहा जाता है ओल्ड एलोवियल। ये किससे बना हुआ है? पुरानी मिट्टी से।
क्योंकि हर साल जब हिमालयन से माउंटेन्स आती है, पानी का लेवल जब बाढ़ के समय में भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये जब डिपॉजिट करती है तो मिट्टी नंबर 3 में जो है फिर वो 4 में चली जाती है, 3 से 4 में जाती है। तो ये जो 4 वाला लेवल आ गया, इसमें नई मिट्टी आई, लेकिन 3 में क्या पुरानी मिट्टी जमी हुई है। तो इसी तरह से इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल के रूप से कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया भागर। नंबर 4 जो है, नंबर 4 वाला जो लेयर्स है, लास्ट वाला लेयर जो नंबर 4 है, ये खादर के नाम से, खादर, इसको बोला जाता है न्यू एलुवियल। कौन सा? न्यू एलुवियल्स है। जो सॉइल्स है वो न्यू है, क्योंकि हर साल फ्लड होती है, बाढ़ आती है, और जब बाढ़ चली जाती है तो मिट्टियाँ वहीं रह जाती है। तो ये हर साल जो ये एरिया है 4th वाला खादर वाला, हर साल फर्टाइल उसको सॉइल मिल जाता है। तो इसी तरह से वो न्यू एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, इसको हर साल रीजनरेट करता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं हमारे नॉर्थर्न प्लेन के लिए। तो एक बार इसमें बुक में देख लेते हैं। देखो, जो हमने अभी डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था प्लेन वाइज रिवर के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा वर्टिकल, तो प्लेन दैट वाज पंजाब प्लेन, वो इंदस रिवर्स के पास, जैसे झीलम चेलम इस तरह से रिवर इस रिवर से बनी हुई है। फिर गंगा प्लेन गंगा रिवर से बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र से, तो 1 2 3। फिर हमने डिवाइड किया उसको हॉरिजेंटल, तो 1 2 3 4 हॉरिजेंटल, तो 1 2 3 4 हमने देखा। तो पहला भाबर, जिस तरह से शिवालिक के नीचे ही है। तो जैसे कहा कि शिव जब भाबर में एंटर करता है तो रिवर जो होता है क्या डिसअपियर हो जाता है। फिर तराई में आते हैं, वो धीरे धीरे दिखने लगता है, जिसके कारण वो लैंड जो होती है मार्शल हो जाती है, और इस तरह से वो गीला है, चिपचिपा है, मार्शल लैंड है, और बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी है। तो इसी तरह से ये एरिया जो है, इसमें जैसे मैंने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान से रेफ्यूजी आए थे, तो यहीं एरिया में गवर्नमेंट ने इनको इस एरिया को दिया गया था रहने के लिए। तो उसी तरह से माइग्रेंट्स सेटल हो गए थे। फिर बाद में इसको एरिया को कट करके एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। फिर भागर दैट वाज ओल्ड एलुवियल सॉइल, एंड खादर दैट वाज फ्लड प्लेन। हमेशा क्या लेके आता है? न्यू एलुवियल सॉइल लेके आता है, तो इसके लिए न्यू एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी था कि आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाना। तो फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ें, देखें, समझें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।